Please subscribe to our channel and also press bell icon to never miss another update. Hi students, in this class we will see ARP protocols second scenario. Second scenario is that we have two PCs, let us take A and B. So we have two PCs. Both are on different network. This is on this network, let us take this is network 10 and that is network number 20. Okay, so this is the scenario. Now these two networks have to be connected with the router. So that is R is a router. So it will also one of the host of this network. So but it does the job of routing, so we call it router. Okay, so that is router. So that is router. It has also connected with this network also, because router connects two or more networks. Whenever it connects two or more network, it will have both networks MAC address interface, or we can say interface. So this router is connecting two networks. It will have two. It will have two interfaces. Okay, so that is first interface, that is second interface. So let us take that is first interface from this network, and that is second interface. Let us take this way. Now what is the problem with ARP is that ARP generates ARP request for the same network. When we have PCs on the same network, it will generate the ARP request. So whenever we have PCs on different network, we could not generate the ARP request. This is the thing. Now let us see how the things will happen. Now let us take this network 10. So this is this is the packet, okay, which network 10 A PC would like to send to B on network 20. Okay, so first of all, things starts with the network layer. Okay, so what network layer will do? Network layer will keep its A's data on in the packet, and it will add its own IP address. That is, let us take its IP address as IP A, and it is 10.0.0.2. Okay, now let us take IP address of this PC. So let us take IPP, and that is 20. It is 20 numbers network. So it is 20.0.0 and 2. This is the IP address of this. Now it has created a network layer. Okay. Now when it comes to the data link layer, because it is source host, so it from network layer to source to data link layer it will come. Okay, because here top to bottom communication happens. Okay, top means communication starts from the application layer, then on above application layer we have user, so user application layer, then we have transport layer, then we have network layer, then we have data link layer, and finally we have physical layer. So it is the story is like that. You can understand, if you would like to understand analogy. The story is like that. Whenever you are having mobile number, or you are in Bhopal, फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास मोबाइल नंबर है आपके फ्रेंड का, तो आपको मोबाइल पे आप कम्युनिकेशन होता है. जब भी आपको अगर कहीं मूव उसके घर जाना होता है, तो आपको अगर उसका एड्रेस नहीं मालूम है, तो व्हाट यू डू, यू विल टेक हिज एड्रेस ऑन मोबाइल. So you will take his address. Once you will get the address, then you will put your feet on the road. Otherwise, you will be at your home. This is the thing. So जब तक आपको कम्युनिकेशन करना है मोबाइल से, आप करते रहेंगे. लेकिन जब आपको उसके घर जाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले मोबाइल नंबर पे एड्रेस पूछेंगे. उसका एड्रेस जानने के बाद ही आप रोड पे जाएंगे. तो क्या हुआ कि मोबाइल नंबर की एनालॉजी किससे हो रही है? मोबाइल नंबर की एनालॉजी नेटवर्क लेयर से हो रही है. ठीक है, इसके बाद जो एनालॉजी हो रही है
जो आपने उससे एड्रेस पूछा, इसकी एनालॉजी हो रही है, एड्रेस पूछने की एनालॉजी डेटा लिंक लेयर से हो रही है। और जब आपने रोड पे कदम रखा, ये एनालॉजी किससे हो रही है? रोड पे कदम रखा तो ये एनालॉजी हो रही है आपकी फिजिकल लेयर से। सो दिस इज द थिंग, now it is clear. Okay, so this basically it deals with mobile number or IP address. Okay, so it is basically IP address. Network deals layer deals with IP address, and it makes the IP datagram or IP packet. Okay, data link layers deals with the address. Okay, so address means it is MAC address or it is physical address. Or okay. So this is the thing. Now this is the physical layer. Actually data transfer, we have both types of address, logical address, IP address and MAC address. Then we will start root, okay, or then we will physically move the data. This is the thing. So this is analogy. Okay, so what is the problem? Why we use ARP? Because what ARP does, this thing will be clear to you. Okay, so when your data is, you are having data and you are having IP address only, because it is the recognition of yours and all the users on the network. So you will have only IP address. You do not have MAC address of anyone. So what happens when you would like to send data to somebody, you know his IP address, but you do not know his MAC address. This is the thing. So your story fails. So यहाँ पे जो ARP प्रोटोकॉल होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का, ये रिजोल्व करता है कि यदि IP एड्रेस ये है तो MAC एड्रेस क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से IP से MAC एड्रेस अपने को मिल पाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। तो अभी क्या हुआ कि आपने देखा कि IP जो आपके पास डेटा था, आपने ये IP B पे भेजना है, उसका IP एड्रेस, IP ये खुद का IP एड्रेस और डेटा ये रख दिया, ये नेटवर्क लेयर ने बना दिया। अभी क्या है कि ये जो जब डेटा लिंक लेयर के पास पहुंचा तो डेटा लिंक लेयर डील करती है किसमें? डेटा लिंक लेयर डील करती है मैक एड्रेस में। तो डेटा लिंक लेयर ने क्या किया, यहाँ पे मैक एड्रेस को ऐड कर दिया, किसका? आपका खुद का और इसका। तो पहले डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लेते हैं अपन, तो लेट अस टेक A B C D E F। ओके, सो मैक एड्रेस जो होता है इसमें 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, 6 पार्ट से मैक एड्रेस कंसिस्ट होता है। तो ये पहला पार्ट जो है, लेट अस टेक 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो पहला पार्ट होता है ये होता है A1, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी डिजिट। तो पहला पार्ट जो होता है दो हेक्साडेसिमल डिजिट से कंसिस्ट होता है। एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो होता है वो 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 बिट, ये दिस इज 4 बिट, दिस इज अनदर 4 बिट। सिमिलरली you have 8 bits here, 8 bit in next part and so on. So you are having 6 part, so 8 6 is 48 bit. तो ये जो मैक एड्रेस होता है ये 48 बिट का होता है। ठीक है, अब ये तो मैक एड्रेस हो गया आपके बी का। ओके, सो इट इज मैक, लेट अस टेक मैक बी। अब ये जो एड्रेस है ये मैक ए का मैक एड्रेस तो इसको पता ही है। ठीक है, ये एड्रेस मैक ए का एड्रेस, लेट अस टेक A B C D E F। ओके, so 1 2 3 4 5 6। so this is the MAC address of MAC A। ये A का MAC एड्रेस है, ये B का MAC एड्रेस है, ये A का IP एड्रेस है, ये B का IP एड्रेस है। अभी क्या है कि ये एड्रेस आपको पता नहीं है। ठीक है, I have mentioned it here, but you do not know the MAC address of B। आपको B का MAC address पता नहीं। You know the IP address of B, you know IP address of yourself, you know MAC address of yourself, but you do not know the MAC address of B। That is the existence of address resolution protocol। तो अभी इसने क्या किया, एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट किया। तो ARP ये क्या है, अभी it is a frame with no MAC address। तो इसने ARP पैकेट बनाया। ARP पैकेट भी इसी तरह का बनता है और ये जो है ब्रॉडकास्ट होता है। तो जब ये ब्रॉडकास्ट होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या लिखा रहता है, इसमें लिखा रहता है F 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 F, ये लिखा रहता है इसमें 6 पार्ट में। ओके, दिस मीन्स ऑल वंस। तो अभी
अभी ये जो ARP पैकेट होगा ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। लेट अस कंसीडर ARP पैकेट। ओके, इसमें डेटा नहीं है अभी, ठीक है, ये फ्रेम नहीं है, ये तो ARP पैकेट ब्रॉडकास्ट हो गया। ब्रॉडकास्ट हुआ मींस क्या हुआ, ये इस नेटवर्क के सभी होस्ट को मिल गया। जब ये इस और उन होस्ट के सभी नेटवर्क को मिला तो इसको भी मिल गया। इसका जो IP एड्रेस एक होगा, एक इसका IP एड्रेस होगा 10.0.0.1 और जो इधर से इसका IP एड्रेस होगा इस नेटवर्क से 20 नंबर का नेटवर्क है तो इसका इधर से IP एड्रेस होगा इसी राउटर का 20.0.0.1। तभी तो ये राउटर दोनों नेटवर्क को कनेक्ट कर पाता है कि दोनों नेटवर्क से इसके पास IP एड्रेस होता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, सी अभी जब ये जो ARP रिक्वेस्ट नेटवर्क 10 के सभी होस्ट को मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इस राउटर को भी मिलेगा, कहां से मिलेगा, इस इंटरफेस 1 से, ठीक है। इंटरफेस 2 से नहीं मिल रहा है इसको, अभी ये पिक्चर में नहीं है, ठीक है। अब ये इसको मिलता है तो ये जो नेटवर्क 10 के जितने भी होस्ट होंगे, ये भी एक होस्ट ही है राउटर, बट इट डज द जॉब ऑफ राउटिंग, सो वी कॉल इट राउटर। तो इस राउटर को जिसका कि IP एड्रेस 10.0.0.1 है, तो ये इसको भी मिल जाता है। जब ये राउटर को ये पैकेट मिलता है तो राउटर क्या चेक करता है कि पैकेट तो हर एक को मिल रहा है और हर एक डिस्कार्ड कर रहा है क्योंकि ये एड्रेस उसमें नहीं है इस नेटवर्क के होस्ट में, लेकिन राउटर का काम है वो हर पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। तो वो इसको चेक करता है और क्या पाता है कि ये वाला जो IP एड्रेस है ये भेजना है, इसको फॉरवर्ड करना है। अब ये फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन ये समझ गया कि ये ARP रिक्वेस्ट है और ये जो एड्रेस है ये इस नेटवर्क का नहीं है और मिल इस इंटरफेस से रहा है। तो ये राउटर क्या करता है, ये राउटर एक दूसरा ARP रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है जो कि कुछ इस तरह का होगा। तो दूसरा जो ARP रिक्वेस्ट ये जनरेट करता है तो वो इस तरह का बनाता है, इस पे इसका ARP रिप्लाई ये नहीं देता। तो ARP रिप्लाई क्या किया इसने, इसका ARP reply, so rather than giving ARP reply, what this router does, ये राउटर एक नया ARP रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है, ARP रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है जिसमें कि ये चीज ऐसे ही नीचे आ जाती है। ये चीज जो है, ये चीज की जगह ये अपना IP एड्रेस लिखता है। कौन सा IP एड्रेस लिखता है, ये वाला 20.0.0.1, ओके। ये सोर्स का एड्रेस है, डेस्टिनेशन का है, ये एज इट इज यहाँ आ जाता है जो कि इसका एड्रेस क्या है 20.0.0.2, ये एज इट इज यहाँ आ जाता है। इस जगह पे ये अपना एड्रेस लिख देता है जो कि इस इंटरफेस से है, ओके। तो 20.0.0.1 लिख देता है और ये भी एक चीज ऐसी ही आ जाती है क्योंकि इसको पता नहीं है ARP रिक्वेस्ट में इसको इसका मैक एड्रेस पता नहीं है। अब क्या हुआ कि ये वाला जो एड्रेस है ये मैक एड्रेस ऑफ A है, तो ये वाला इधर काम नहीं करता, यहाँ पे ये अपना खुद का एड्रेस लिख देता है। यहाँ लेट अस टेक इसका एड्रेस जो है ABCDEF, इसको ले लें आप 1 3 5 7 9 0, ये आपने ले लिया एड्रेस इसका, ठीक है। इसका मैक एड्रेस ले लिया राउटर का आपने, इसका मैक एड्रेस आपको पता नहीं है, जो पता करना चाहते हैं आपने इसका IP एड्रेस यहाँ ले लिया, आपने इसका IP एड्रेस यहाँ ले लिया, यहाँ से इसने ARP रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया। अब ये ARP रिक्वेस्ट इस 20 नंबर के नेटवर्क के हर होस्ट को मिलेगा जिसमें कि सिर्फ यही रिस्पॉन्ड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें इसका एड्रेस लिखा हुआ है। अब ये रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या करेगा, ये जो होस्ट है ये यहाँ पे अपना मैक एड्रेस इसमें मेंशन कर देगा। इसका मैक एड्रेस क्या है, इसका मैक एड्रेस अपन ने लिया था ABCDEF, इसका मैक एड्रेस अपन ने लिया था 1 2 3 4 5 6, ओके। ये मैक एड्रेस अपन ने इसका लिया है। अब इसने ये मैक एड्रेस यहाँ मेंशन कर दिया। अभी क्या हो रहा है, ये जो ARP रिप्लाई कहलाएगा, ये
रिक्वेस्ट था, जब इसमें इसका मैक एड्रेस आ गया तो ये रिप्लाई बन गया, जब इसका मैक एड्रेस नहीं था और इसको मिला था तो ये रिक्वेस्ट था, और जब इसमें इसका आईपी इसका मैक एड्रेस आ गया तो ये रिप्लाई बन गया। ये रिप्लाई किसको मिला, ये रिप्लाई इस राउटर को मिला। अब इस राउटर ने क्या किया, फिर से एक ARP रिप्लाई बनाया। अब इसने ARP रिप्लाई बनाया और जिसमें जिसमें इसने IPv, ये समझ लीजिए, अब ये ARP रिप्लाई इसने बना दिया जो अभी तक नहीं बना था। अब क्या किया इसने, इसने इस जगह पे इस एड्रेस को ले आया, मैक एड्रेस ऑफ B। ये मैक एड्रेस, अब ये कंप्लीट हो गया। दिस इज मैक एड्रेस ऑफ A, दिस इज मैक एड्रेस ऑफ B, दिस इज IP एड्रेस ऑफ A, दिस इज IP एड्रेस ऑफ B। नाउ इट इज ARP रिप्लाई। ये ARP रिप्लाई ये राउटर इस होस्ट को दे देता है। अब कहाँ पे जाती है बात, अब बात पहुंचती है अपनी जाके इसके पास, जब ARP रिप्लाई मिल गया इसको, तो इसने क्या किया, इसने फिर से एक फ्रेम बना दिया। फ्रेम किस तरह का बन गया इसका जो फ्रेम बना वो इस तरह का बना, जिसमें कि मैक एड्रेस आ गया सबसे पहले तो डेस्टिनेशन होस्ट का, जो कि क्या है ABCDEF 1 2 3 4 5 6. So this is the MAC address of B. Now A has IP address of B. Yes. A has IP address of its own. Yes. A has IP address of B. Yes. It has A has MAC address of B. Yes, it has. A has MAC address of its own. Yes. So now it has both type of address, IP address or MAC address, logical address or physical address. Okay. So now it will add data to this frame. Now this is the frame, it will be transferred through this router to this network. तो ये फ्रेम जो होता है, ये जो है इसी नेटवर्क के सभी होस्ट को मिलता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिस जो कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, इसके सभी होस्ट को मिलता है। ये भी जो है राउटर भी इसी का एक होस्ट भी है, इस इंटरफेस 1 से इसको भी मिलता है। तो राउटर बैठ के ये चेक करता रहता है कि जो भी पैकेट हो उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है। अगर डेस्टिनेशन का एड्रेस इस 10 नहीं है, डेस्टिनेशन के एड्रेस में नेटवर्क नंबर 10 नहीं है, जब तक 10 होता है तो ये राउटर कुछ नहीं करता, क्योंकि वो पैकेट इसी नेटवर्क के किसी होस्ट का है, वो डायरेक्ट डिलीवर हो जाता है। लेकिन जब ये इसमें इसका डेस्टिनेशन एड्रेस में दूसरा नेटवर्क मेंशन होता है, जैसे यहाँ 20 मेंशन है, तब इसका काम शुरू होता है। तब ये अपनी राउटिंग टेबल सर्च करता है और देखता है कि ये वाले जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस है, इसमें जो नेटवर्क नंबर 20 है, तो नेटवर्क 20 नंबर के लिए इसको कहाँ फॉरवर्ड करना पड़ेगा इसको। तो ये 20 नंबर के नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये क्या करता है, इसी को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देता है इस होस्ट को पैकेट। ठीक है। एक चीज और हो सकती थी कि अगर ये 20 की जगह 30 होता है यहाँ पे, तो ये क्या करता, ये राउटर ये इसको चेक करता कि ये 30 नंबर का नेटवर्क है, तो इसका एक और इंटरफेस हो या ये रहता कि 30 नंबर के नेटवर्क पे जाने के लिए इसको किस राउटर पे जाना है, तो ये उस राउटर पे इसको फॉरवर्ड कर देता। सो दिस इज ऑल अबाउट the ARP protocol in second scenario. We have seen first scenario also in previous video is that कि दोनों होस्ट एक ही नेटवर्क पे है। सेकंड सिनेरियो हमारा ये है कि दोनों होस्ट अलग अलग नेटवर्क पे है। ओके, अब अपन इसमें अगली वीडियो क्लास में ये सीखेंगे कि अगर ये प्रॉक्सी ARP कैसे वर्क करता है। तो अभी तो क्या हुआ कि इसको ARP रिक्वेस्ट इसके पास आया, तो इसने उसको हैंडल करके इसका मैक एड्रेस खुद लेके और इसको दे दिया। अब प्रॉक्सी ARP में क्या होगा कि ये क्या काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा, खुद ही इसको अगर ARP रिक्वेस्ट मिलेगा जो कि दूसरे नेटवर्क के किसी होस्ट का होगा, तो उसको ये खुद ही रिस्पॉन्ड कर देगा, तो ये इसको डायरेक्टली मैक एड्रेस मिल जाएगा। सो दिस इज द स्टोरी। ओके, so that is called proxy ARP. We'll see in next class. So thank you.